Your thoughts on being a doctor and life, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको आजकल यंगस्टर्स बोलते हैं. सो एक तरह से ऐसा लगता है कि आपने जो अचीव करना है, जो अचीव कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या खो रहे हैं. At what age should one start screening heart related things? Any early signs? Anything that heart functioning is reduced is failure. कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ हार्ट अटैक पे होता है या हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट पे भी होता है कुछ? एक मिडिल क्लास के लिए भी, इट इज नॉट फॉर पुअर, इट इज आल्सो फॉर अ मिडिल क्लास. एक मिडिल क्लास के वन मिसहैप उनका पूरी सेविंग खराब कर देता है. Hi everyone, welcome to another episode at Life Uncovered with Weber. We have someone on a very, very huge demand that we have got. We wanted someone to talk about health, about heart especially. We have Dr. Subhash Balara. He is MCH cardiothoracic surgery. He is professor and head of department for cardio at MDM Hospital, Jodhpur. Welcome. Thank you. So before we jump into the heart related questions, आपकी जो journey रही है, you've from Jodhpur, we just got to know you've studied in Bombay also, and we were together not knowing each other for some time. And very interestingly, ये एक और चीज़ है जो for audience, kids are studying together. Yes. So we bumped into each other at the school first and for a lot of other events. So welcome to the show, sir. Thank you. How was the experience of studying MBBS? And because क्या है कि I come from a doctor's family and मेरे को बहुत लगता है कि एक चीज़ जो मेरी लाइफ में रह गई, I wish I was a doctor. Your thoughts on being a doctor and life, work-life balance जिसको आजकल youngsters बोलते हैं. See, being as a doctor, you definitely feel very good. You know, you are very respected at any place. Wherever I go, you know, they love me and they respect me a lot. But the issue is कि what I'm paying for that. Yeah. I'm not spending time enough with my family, with my kids. So एक तरह से ऐसा लगता है कि आपने जो अचीव करना है, जो अचीव कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या खो रहे हैं. Correct. So it is very difficult to balance things. See what happens. It is not like that. It is not so easy कि आप बोल दो कि नहीं, it is your choice. आप अपनी फैमिली को दे दो टाइम. Correct. It is never like that. आप एक सिस्टम में होते हैं, आप पेशेंट क्लाइंट्स के साथ में होते हैं, आप पेशेंट आपसे कुछ एथिक्स रखता है, आपसे कुछ डिमांड रखता है, एंड यू हैव टू गिव टाइम फॉर दैट आल्सो. तो आप जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, आप नहीं छोड़ के जा सकते, आपको उसके साथ देना ही पड़ता है. तो व्हाट यू सैक्रिफाइस इज योर फैमिली. So yes, it's good to be a doctor, but have to go through a lot of it. Perfect. So jumping into the heart related questions, because बहुत सारे questions आए हुए मेरे पास. First question that has come is, at what age should one start screening heart related things? Any early signs? Anything? See, a decade before, 10 years back, what we used to say was कि जो heart diseases हैं, that are mostly common after 50s, 45, you know, after 60. But now recently what we have seen is कि most of the diseases, most of the youngsters are, you know, getting into it. So the bulk of patients having symptoms related to heart are in their late 30s and 40s. So it is very alarming sign. अभी इसके बहुत सारे कारण हैं. To jump into it, there are a lot of reasons for that. But important thing is कि people who are into this category of this age group with these symptoms, with these lifestyle and these risk factors, they have to get screened, right? जैसे कि आपके late 30s में you should start getting yourself routinely investigated for your cholesterol levels, lipid profiles, your sugar levels, your blood pressure checkup. ECG कॉमन टेस्ट हैं, ये किसी भी लैब में कहीं पर भी बहुत आराम से हो जाते हैं. तो ये routinely आपका होना चाहिए. Most of the MNCs and any other corporate, they have incorporated these tests as a routine procedures. Correct. Even in any field, you know, in our medical also, for that we have our routine test to get it done every year. Correct. Screening test. So the basic test for cardiac are ECG, echo and lipid profile blood test and all. तो ये तो आपको every after 35 के बाद. Yes. सबको. Okay. Yes, and 40 it is compulsory. I mean अभी तो हमारे records में आ गया है 40 के plus में आपको करवाना ही है.
तो ये आपके इंश्योरेंसेस में है, कंपलसरी है, 40 के बाद में तो आपको कराना ही है ये सारे टेस्ट। करेक्ट। एंड कोई ऐसे है कि कोई फैमिली हिस्ट्री हो या कोई सिम्टम्स हो तो 20s या अर्ली 30s में भी कर देना चाहिए? यस, बहुत अर्ली 20s में ज़रूरत नहीं है, बट यस फैमिली में होता है तो 5, 7, 10 years बिफोर ऑनसेट, जो आजकल 30s में हो ही गया है। करेक्ट। So it is around 35 only, but you have to get screened. Yes, talking about families, we all know cardiac diseases are common in families. They travel, they have a familial trait. तो जिनके पेरेंट्स को, जिनके अंकल्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को है, they are prone for this. So they have to take care of their health and they have to get screened every time. इंटरेस्टिंग। एक कोलेस्ट्रॉल के, क्योंकि आपने कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और ये बोला, तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या इज ऑलवेज बैड, या कितने से कितने में ठीक रहता है, और कुछ एज स्पेसिफिक होता है, क्या होता है? See, cholesterol has been in bad books of cardiac books for last several years. और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि लिपिड प्रोफाइल आपको करवाना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना चाहिए। बट द थिंग इज, कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा इज शुगर इज मोर डेंजरस दैन कोलेस्ट्रॉल, एंड द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपके आजकल वीट एंड फोकस है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उनको डाइट से अवॉइड करना है। टॉकिंग अबाउट कोलेस्ट्रॉल, यस, लिपिड प्रोफाइल में जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज डेंजरस, क्योंकि वो ही डिपॉजिट होता है दैट जनरेट्स फ्री रेडिकल्स, जो कि आपके प्लाक्स डेवलप करते हैं और डिपोजिशन होता है कोरोनरी में, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। कॉमन लेमैन में एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, दैट इज HDL कोलेस्ट्रॉल, जो अपने लिवर से जनरेट होता है, जो आपके एंडोर्फिन्स के साथ में, आपके योगा के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में और अच्छी डाइटरी हैबिट्स के साथ में लिवर उसको जनरेट करता है। So that equals and antagonizes LDL also. So the ratio is more dangerous. If you have got high LDL, it's okay. But if you have got high HDL also, then it's not so dangerous. It is dangerous, but not so. But if you have very low HDL and you have very high LDL, then you are really in trouble. Okay, so अगर कोलेस्ट्रॉल कम भी है बट वो रेशियो मिसमैच है, तो one has to be very careful. Ratio is more dangerous instead of absolute level. Absolute level भी है, but more specific is the ratio. Very interesting. ये मेरे ख्याल से कई लोगों को नहीं पता होगा, लोग सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर ही देखते हैं। एब्सोल्यूट नंबर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, एंड बिकॉज आपने हार्ट अटैक की बात करी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, तीनों अलग चीज़ें जो मैं समझ पाता हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ हार्ट अटैक पे होता है या हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट पे भी उनका कुछ होता है? सी, ये एक सीक्वेंस है कार्डियक डिजीज का। हार्ट अटैक इज बेसिकली एंजाइना, कि अगर आपके ब्लड सप्लाई नहीं मिलती हार्ट को, इट इज एज सिमिलर एज एनी अदर ऑर्गन। ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलती, यू गेट अ स्ट्रोक। करेक्ट। आपको पाँव में नहीं आता, यू गेट क्रैम्प्स एंड एस्कीमियाज एंड गैंग्रीन। सिमिलरली वी हैव हार्ट ऑल्सो. If we don't get supply, if the heart doesn't get supply by coronaries, either it gets blocked or disrupts. So उस एरिया में जिसमें blood supply नहीं आ रहा है, that area gets damaged and that requires blood, तो वो मरने लगता है. That pain is ischemia and we call it heart attack in layman's language. तो that is heart attack. अगर ongoing heart attack है ना, continuously चल रहा है and we are not able to manage it, by some reason we are not able to manage it and patient crashes, and that is मतलब heart रुक जाता है and patient dies, that is cardiac arrest. Okay. Right, that can recover by shocks and CPR management, but that arrest is cardiac arrest. Failure is a terminology when it can be an acute failure, just cardiac arrest से पहले का failure terminology, and one can be chronic failure. Long standing attacks हैं, पता नहीं पड़ा किसी को, उसको ऐसा लगा मुझे gastritis है, ले रहा है टैबलेट्स, ले रहा है एसिडिटी के टैबलेट्स ले रहा है, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई, that blood supplies were not so critically impinged कि MI आ जाता, अटैक आ जाता। तो उस एरिया में धीरे धीरे सप्लाई नहीं हुई, तो वो एरिया डैमेज होता चला गया हार्ट का। इवेंचुअली उस एरिया का हार्ट का सप्लाई बंद होने की वजह से वो एरिया कंप्लीटली डैमेज हो गया। तो नाउ द हार्ट फंक्शनिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 70% to 30%, 20%,
एंड इवेंचुअली पेशेंट को अब क्योंकि सफिशिएंट पंपिंग नहीं कर रहा है हार्ट, सो ही डेवलप सर्टन सिम्टम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू अटैक बट आर रिलेटेड टू कार्डियक, जो कि उसके फेलियर के सिम्टम्स हैं, क्योंकि अब हार्ट इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, करेक्ट, राइट, बिकॉज इट वाज डैमेज्ड रेगुलरली और एक्यूटली फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, एंड नाउ द फंक्शनिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 70 to 20-30%. तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, क्रोनिक का. एक्यूट तो अटैक के साथ में होता है. तो एनीथिंग दैट हार्ट फंक्शनिंग इज रिड्यूस्ड इज फेलियर. ओह, बहुत इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये आपने जो सबकी इसमें कोई वर्ड क्या मैं भूल रहा हूँ, सीपीआर? सीपीआर, यस, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. आजकल ये बहुत एक हर मेडिकल के अंदर पुलिस वाले दे आर ट्राइंग टू educate people about CPR training. Correct. Because CPR training is a maneuver where we compress the chest, right, and provide oxygen so that till any help is arrived, we are able to maintain the blood supply to the brain and to vital organs. We know the patient has developed heart attack. Correct. So heart is not working efficiently. So till that help is arrived, correct, we are able to pump manually by heart to the vital organs so that the vital organs are not damaged. And once we get the help and we are able to manage the heart, we are able to restore the. एक और चीज मेरे को इस पे आपसे पूछनी थी. जब टाइम्स ऑफ इंडिया वाले अपन में बैठे थे, यू वर टॉकिंग आल्सो अबाउट सम किट्स, कि जैसे मॉल में सीपीआर किट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सी नाउ इशू इज कि देयर आर CPR maneuver we all know, कि arrest हो गया है and we are pumping. But there is a terminology of fibrillation, जैसे हम ECG कराते हैं, one is straight line, that is arrest. Correct. One is fibrillation, यानी कि heart is actually working but it is not pumping. Okay. है ना, it is jabbing, इसको fibrillation कहते हैं. Okay. So we have got equipments which are called as defibrillator. Okay. This is actually rhythm disturbance. आप जैसे उसको शॉक देते हैं, वो रिदम उसका नॉर्मलाइज हो जाता है. Okay. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग CPR, इफ वी हैव गॉट द डिफिब्रिलेटर्स, वी कैन गिव अ शॉक एंड वी कैन रिवर्ट द चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन द हार्ट, एंड दैट पेशेंट कैन बी एब्सोल्युटली इन अ वॉकिंग कंडीशन इफ यू आर एबल टू डिलीवर द defibrillator waves at particular time if he is having fibrillation. तो ये जो कार्डियक अरेस्ट टाइप सिचुएशन है उसमें भी यूज हो सकता है, जैसे मॉल में सडनली किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए? क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो फिब्रिलेशन के बाद अरेस्ट होता है. ओके. तो इफ वी आर एबल टू वी कैन इफ वी आर एबल टू जज कि ओके नाउ फिब्रिलेशन हो रहा है और अरेस्ट, तो वी कैन गिव अ शॉक. शॉक इज ऑलवेज गुड, इट इज नॉट कि फिब्रिलेशन में ही काम करेगा, अरेस्ट में भी काम करता है. Okay. तो हम उसको देंगे, डिलीवर करेंगे टाइमली, तो वी कैन रिवाइव हिम. सो अगर हमारा एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ था कि कीपिंग डिफिब्रिलेटर्स टू प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि पूरी लाइफ लॉन्ग में भी अगर 20-30 इयर्स में भी अगर डिफिब्रिलेटर एक बार भी काम आता है, बिल्कुल, तो इट इज सेविंग समवन्स लाइफ एंड दैट इज वर्थ इट. एब्सोल्युटली. सो ये किट कितने का आता होगा जनरली? नॉट वेरी कॉस्टली. इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 2 lakhs to 5 lakhs. अच्छा, पर्सनल कैपेसिटी में तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है. नहीं, you cannot keep it personally. It is heavy kit, you cannot carry on. Okay. So you can place it a place where yes. बहुत सारा ongoing public area है, malls, any stations and all, और simple steps हैं, वो उसको display कर सकते हैं how to use it. And ये कार्डियक अरेस्ट होने के कितनी देर तक? ये तो देखिए immediately, for we say within 20 seconds if you don't deliver blood to brain, पेशेंट को ब्लड नहीं मिलेगा अगर 20 सेकेंड्स ब्रेन को, तो वो फिर ब्रेन डैमेज हो जाएगा और कोमा में चला जाएगा, या हाइपोक्सिक डैमेज हो जाएगा ब्रेन को, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा. तो विद इन 20 सेकेंड्स प्लस एज अर्ली एज पॉसिबल, वी से 20 सेकेंड, बट अगर वहां पर जितनी भी जल्दी अपन डिलीवर कर सके. ओके, तो जब तक वो आ रहा है तब तक एटलीस्ट हाथ से सीपीआर तो दे दें. सीपीआर दे दें ताकि ब्लड फ्लो तो हम मेंटेन करेंगे ब्रेन का. और जब तक वो लेके आके डिलीवर करे, वी आर एबल टू इमीडिएटली, क्योंकि वहां से टू टेक हिम टू अ हॉस्पिटल इट विल टेक सम टाइम. करेक्ट है ना, एंड टू मेंटेन दैट CPR कंटिन्यूअसली इज आल्सो अ डिफिकल्ट जॉब.
उनको CPR देना भी आना चाहिए अच्छे से. If he is not able to deliver CPR, adequate CPR, see if he is not compressing adequately, you won't be able to pump that amount of blood to brain. ज़्यादा प्रेस कर देगा तो बोन्स इंजर करके हार्ट को इंजर कर देगा, जो वैसे भी फिर हेल्पफुल नहीं है. तो एडिक्वेट CPR तब तक देना जब तक कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे. इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी इजी. सो इसलिए वो तो अगर वो हमारे पास अवेलेबल है एट अ प्लेस तो हम उसको तुरंत डिलीवर करके एंड वी कैन रिवर्ट दैट. ओके, सो ये अगर वॉल्यूम में बाद में सस्ती हो पाए, अफोर्डेबल हो पाए, देन पीपल कैन कीप इट. एंड स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में तो बिल्डिंग्स के अंदर तो सोसाइटीज मेजर एरियाज में हम लोग जैसे आज हम देखते हैं जैसे मॉल्स हैं, बड़े एरियाज हैं जहाँ तो एक at every small areas, small distances you have a mall. Correct. So you can call that okay, there's a mall, that a mall is nearby. Correct. And some things like any sizable mall has this. Correct. So you are able to know that okay, there we can get that defibrillator, we can get that. That's interesting. Till we are able to fetch the ambulance and shift him to any hospital. Oh, that's very interesting. So moving on, एक और आपसे बात हुई थी and I would want everyone to hear that from you. जो ये CAT scan होता है, cardio CAT scan, उसकी क्या ओपिनियन है आपकी, and who should do it and how should they do, अगर चाहिए क्या? See, we'll get to the basic investigations of heart. ठीक है. जो एक normal ongoing healthy person को करवाना चाहिए, that is ECG, echo, TMT and lipid profile. करेक्ट. राइट, ये 4 कॉमन टेस्ट हैं, बहुत इजीली कहीं भी हो जाते हैं एंड यू कैन स्क्रीन 99% ऑफ कार्डियक डिजीज विद दीज सिंपल 4 टेस्ट. नाउ इश्यू कम्स कि इफ ही हैज सिम्पटम्स, इफ ही हैज फ्यू चेंजेस इन ECG एंड वी एज ए डॉक्टर फील कि वी कैन गेट अ टेस्ट दैट इज लेस इन्वेजिव एंड वी कैन कम टू अ कंक्लूजन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को ECG चेंजेस है, नॉट एक्यूट ECG चेंजेस लाइक जिसमें हमें क्लियरली पता है कि अटैक है, बट देर आर फ्यू चेंजेस एंड वी वांट टू रूल आउट. सी देर आर 2 different terminologies. One, we know that he has a cardiac disease and one we want to rule out. Correct. Like, तो CT scan is very good to rule out, right? आपने young person को CT में भेजा. CT is basically when you get CT angio done for any vessel, any blood vessel, it is as similar to any other vessel. तो वैसे ही कोरोनरी का भी, हार्ट की ब्लड वेसल का भी आप CT करवा सकते हैं. तो you will get to know the status of the blood vessel of heart, whether there is any blockage or not. But the issue with CT is कि it is not very accurate. Okay. It is not very accurate, but it has got नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, लाइक कि अगर कैल्शियम ज़्यादा नहीं है, यानी कि यंग पर्सन है एंड वी वांट टू रूल आउट एंड दैट मीन्स इफ CT कम्स आउट टू बी नॉर्मल देन वी कैन से दैट ओके ही डज नॉट हैव एनी कोरोनरी डिजीज. बट अगर हम CT कराते हैं और उसके अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं तो वी आर नॉट श्योर कि ये ब्लॉकेजेस एक्चुअली है या नहीं, बिकॉज CT एक्सेस कैल्शियम को भी ब्लॉकेज की तरह लेता है, दैट इज एक्चुअली लोकेटेड आउटसाइड द ब्लड वेसल. Right, we are concerned about the blood flow inside blockages, right, not the outside one. But CT can detect both, so we are not able to actually specifically detect कि ये अंदर ज़्यादा ब्लॉकेज है या बाहर है. होता है, but better is the gold standard is still coronary angiogram, जो जिसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं. वो थोड़ा इंट्रूसिव है. हाँ, यस. अगर हमें लगता है कि किसी को अटैक है एंड हैज क्लियर चेंजेस इन ECG एंड echo, ही शुड गो फॉर एंजियोग्राफी, नॉट फॉर CT. बट अगर किसी को है कि नहीं, आई वांट टू रूल आउट, मेरे ECG लिपिड प्रोफाइल थोड़ा डिरेंज्ड है, echo इज फाइन, ECG कम्स आउट टू बी फाइन, बट आई हैव रेगुलर चेस्ट पेन एंड इट फील्स लाइक कि मुझे कार्डियक है, तो ही कैन गेट अ CT स्कैन डन. वी कैन रूल आउट, ओके CT इज फाइन, यू कैन गो एंड स्लीप. So it has got more of negative predictive value. We can rule out a cardiac disease, and for patients or persons who have got low calcium scores. Calcium नहीं होगा तो हमें दिखाई अच्छे से देगा अंदर है. और लो कैल्शियम स्कोर के पहले ब्लड से चेक किया जा सकता है. यंगस्टर्स में देखिए, नॉर्मली हर ब्लड वेसल के अंदर देयर आर येलो स्ट्रीक फैटी लेयर्स होती हैं जो बचपन से ही होते हैं.
the lipid and calcium gets deposited into it slowly and slowly. किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, but it gets deposited. तो ओल्डर एज में वैसे ही कैल्शियम मिलेगा हमको, तो ओल्डर एज के अंदर हमें सीटी में बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा। तो यंगस्टर्स में, यंग 40s के अंदर हम लोग सीटी से काफ़ी कुछ हम पता कर सकते हैं। सॉरी, ओल्डर की डेफिनेशन आपकी होगी 50 एंड अबव या अराउंड 55 एंड अबव? 55 एंड अबव। Yes. So till 55 it's a decent test to rule out your cardiac disease. But post 55 it's post better 55 it is better to get a angiography done. If 55 में भी हर करवाते हैं CT और it comes out to be normal, तो you can rule out, okay, no, he's fine. Yeah, but अगर कुछ है तो वो नहीं पता चले। Then if है तो you have to go through angiogram. Okay. To clear it. Perfect. एक और क्वेश्चन आया था बड़ा इंटरेस्टिंग, वैसे शायद एमडीएम में नहीं होता, बट आपका एक्सपोजर बहुत है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हैव यू सीन पेशेंट्स जिनके ट्रीटमेंट के बीच में उनको लगता है कि पैसे खत्म हो रहे हैं तो और ट्रीटमेंट घर जाके कराएंगे, हॉस्पिटल से बीच में डिस्चार्ज हो जाते हैं? ये एक इट इज़ वेरी कॉमन टेंडेंसी, कॉमन प्रैक्टिस इन आवर इंडियन सिनेरियो। यहाँ in spite as compared to any other country, we have got cheaper health sector. Correct. But still, in spite of everything, medical is costly. आप इन्वेस्टिगेशंस में, आप ट्रीटमेंट में कैरी आउट कराते हुए आपका पैसा बहुत खराब होता है, खर्च होता है, खराब नहीं, खर्च होता है। करेक्ट। एंड इवेंचुअली ही फील्स कि ओके अब मैं ठीक हूँ तो मैं फिर अब नहीं लेने की ज़रूरत है मुझे टैबलेट। सो दैट इज़ एक्चुअली नॉट हेल्पिंग दैट पेशेंट। आधे ट्रीटमेंट छोड़ता है तो वो कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ही हैज़ टू अंडरगो complete therapy even after any treatment by like he undergoes any stenting or a bypass procedure, he has to take medicines, he has to take it. तो वो बीच में छोड़ देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। nowadays government is promoting free drugs and all, so they have this they get free drugs also, but still they feel कि okay अब तो हो गया तो हमें नहीं लेना, या इतनी दूर जाएंगे और आधी बार टैबलेट मिलती है, आधी बार हमें बाहर से लेनी पड़ती है, तो पेशेंट छोड़ देते हैं, पूरा लेते नहीं है। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक मिडिल क्लास के लिए भी, इट इज़ नॉट फॉर पुअर, इट इज़ ऑल्सो फॉर अ मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास के वन मिसहैप उनका पूरी सेविंग खराब कर देता है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये मिसहैप 2 या 3 हो जाएं तो ही इज़ इन ट्रबल, the family is in trouble. तो इवेंचुअली फिर वो दे लेट गो, व्हाट वी हैव सीन कि सर देख लो इसमें ये वाला ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम थोड़ा चीपर ऑप्शन कर ले। तो इंस्टेड ऑफ दिस इंश्योरेंस इज इफ दे गेट एनरोल्ड टाइमली इनटू इंश्योरेंस तो ये सब मैनेजेबल है। जैसे गवर्नमेंट ने भी स्कीम स्टार्ट करी हुई है कि आयुष्मान एंड मुख्यमंत्री योजना, जिससे कि फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। करेक्ट। तो इसी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट्स का भी स्कीम्स निकाली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स निकाली, तो कंपलसरी हो जाता है कि ओके यू गेट सेव्ड विद दिस हिकअप्स, फाइनेंशियल हिकअप्स। करेक्ट। तो ये तो जिसके नहीं है और एक एड ऑन भी करना चाहे तो आई फील कि मेडिकल इंश्योरेंस इज मस्ट। हमारे अनफॉर्चुनेट है, हमारे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सब लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर फोकस कम है। इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, लाइफ भी कम लेते हैं, मोटर सब ले लेते हैं क्योंकि पुलिस रोक लेगी, पुलिस रोक लेती है ना इसीलिए। हॉस्पिटल में भी अगर कोई रोक लेना कि रोक ले तो ले ले यार, तो शायद इट इज नॉट बिकॉज कि वो इसलिए है कि मेरे को ना उसको ये लगता है कि नहीं, वो भी है कि कार अगर एक्सीडेंट हो गया और मैं ले गया वहां पर बिना इंश्योरेंस के तो गैराज में, तो वो इतना कॉस्ट आएगा। कार के लिए लेने के लिए ठीक है, अपने दिल के लिए नहीं, अपने लिए नहीं लेते। हाँ, इंजन करा लेंगे बट दिल का नहीं कराएंगे। दैट इज सो ट्रू। प्लस आपने जैसे एमसीएच बताया 2009 से 12 एंड प्लस उससे पहले भी यू वर प्रैक्टिसिंग एंड एवरीथिंग। ओवर लास्ट 15-20 इयर्स मेडिकल कॉस्ट भी आपने जंप होते हुए देखी होगी। तो बिग टाउन्स में, छोटे में भी, व्हाट आर योर थॉट्स कि किस तरीके से कॉस्ट ऊपर जाएंगे मेडिकल कॉस्ट? सी मेडिकल कॉस्ट जब हम व्हेन आई वाज स्टडीइंग इट केम अराउंड, सीबीजी वाज अराउंड, bypass was around 2 lakhs, 2.5 lakhs. Correct. Right, at a premium institute. लेकिन अभी 15 years में it is around 7 lakhs, 8 lakhs.
in a Correct. premium institute with same facilities, Yes. which it was 2.5 lakh. So it is around 4 to 5 times the cost which it was around in 15 years. in 15 years, 10 to 15 10 years, to 15 years. जो कि अभी एकदम ग्रोथ नहीं हुआ है. हाँ, अभी मेडिकल का ग्रोथ तेज होएगा, हाँ, क्योंकि अभी तक इंश्योरेंसेस बहुत गवर्नमेंट ने बहुत इंश्योरेंस के ऊपर फोकस किया है. हाँ. तो गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंसेस दिए हैं वो थोड़े चीप दिए हैं, तो इस वजह से हॉस्पिटल्स ने बहुत कॉस्ट एग्जैजरेट नहीं किया है, एंड दे हैव केप्ट अराउंड द इंश्योरेंस कॉस्टिंग अराउंड द इंश्योरेंस लेवल ओनली ऑफ द गवर्नमेंट इंश्योरेंस लेवल. ये मुझे लगता है नेक्स्ट 5-7 ईयर्स 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्क्वीज रेट्स है, इतने में करना बड़ा मुश्किल है. तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो हो सकता है, बट प्राइवेट में आपको चाहिए 5 ईयर्स में मुझे लगता है डबल होगा. Absolutely. हाँ, तो बिना इंश्योरेंस के बिना उसके बड़ा मुश्किल है. So in fact, so मैंने अपने लिए भी और फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले रखी है, बट मैंने जब पहली बार ली थी was roughly 2012-13 एंड मैंने अपने लिए 20 लाख की ली थी, विच आई थॉट उस समय 20 लाख बहुत था, जो अभी बढ़ के 40 हो गया है, विच इज़ ऑल्सो डिसेंट राइट नाउ. बट मैंने अभी ये रियलाइज़ किया कि अभी 40 काफ़ी है. आज से 15-20 साल बाद जब जेन्युइनली शायद रिक्वायरमेंट पड़े तब 40 बहुत कम पड़ने वाला है. जाएगा. तो मैंने अभी एक अपने लिए 4.9 करोड़ का लिया है कवर, जिसमें कुछ और डिडक्टिबल्स और सब टेक्निकलिटीज में ना जाके, एंड विद और मैं और मेरी वाइफ एंड अपन अप्रोक्सीमेटली द सेम एज है. तो 4.9 करोड़ का प्रीमियम मेरे को सिर्फ आया है 2,500, 2,408 रुपीज टू बी वेरी प्रिसाइज. इस तरह के भी प्रोडक्ट्स आते हैं. तो इनफैक्ट कई लोग मुझसे पूछते हैं इतना क्यों. मैंने कहा क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि शुरू का पैसा नहीं मिलेगा, बाद का मिलेगा, बट शुरू के लिए मेरा इंश्योरेंस है. तो मैं अभी सब लोगों को बोलता हूँ कि अगर इंश्योरेंस ढंग से देखा जाए, मुझे बताना है, मैं ये पक्का बताऊंगा आपको. नहीं, मेरे जैसे ही मैंने लिया और मैंने अपने पोस्ट में मेरे कॉलेज वाले सारे दोस्त आ गए, सब सेम एज के हैं, कि यार 2,500. मैंने कहा देख, शुरू के लिए तो आपको कंपनी का ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है या गवर्नमेंट का स्कीम है. प्रॉब्लम क्या होती है, सडनली पापा से भी कई बार आज से 7-8 साल पहले, नो माय फादर, उनसे बात हो रही थी, तो डॉक्टर्स जनरली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते. तो पापा ने कहा छोटे मोटे तो हो जाएंगे, बड़ा से किसी दिन आ गया तो क्या, या कैंसर या कोई ऐसी चीज आती है. I'll touch to that point. हाँ, कि what the major issue is, कि हमारा जो डॉक्टर्स क्यों नहीं लेते थे, मैंने लिया हुआ है, हाँ, डॉक्टर्स क्यों नहीं लेते थे, उनका एक कॉमन चीज़ है कि ओके, ऑल माय कोलीग्स आर डॉक्टर. correct. Whenever I require a help, it is always free of cost. It is always on their toes, and we are always helping each other. So why to get into this trouble, right? As such, even if I get an insurance, I won't be able to use it, Correct. right? Lekin it's not like that. I'll come to it. Even the government insurances, all the common insurances, or the insurances which we are getting, why it is not adequate? Because it does not cover the advanced treatments. Correct. Right? A single line is advanced treatments. Whichever treatment which we are getting for, I'll talk about cardiac only. Correct. Whichever treatment we are getting for cardiac is the basic treatment. Basic surgeries, basic stents, basic procedures. Any procedure which is advanced, see, कोई भी एडवांसमेंट होता है तो वो बेटरमेंट के लिए होता है. करेक्ट. एक आपका वाल्व है या बाईपास है या आपका see, for example, I'll give you a procedure that is called as TAVI, in which we change a heart valve by a percutaneous technique. We don't even anesthetize the patient. Oh, wow. And we don't have any cuts, anywhere. And he can come and go, like a walking, and get a valve change, जिसके लिए हम 10 दिन तक एडमिट करते हैं, ऑपरेट करते हैं. But it is not covered. It is not covered in insurance. Oh. Now, if somehow someone requires aortic valve implantation and he has some insurance, he has to go through open surgery only, because that's the basic treatment, right? He has to get that. Yeah, old age में होता है mostly. Correct. तो उसके लिए वही करवाना पड़ेगा उसको. To get that, he has to have an insurance which covers all advanced treatment. We'll talk about onco. Every day, we have got latest onco drugs. आप किसी oncologist से जरूर करिए podcast, because we'll be following. क्योंकि every day it is changing. Correct. Every day it is changing, and that drugs are very costly. Very. आप जैसे ही एक important drug को touch करते हैं, and see, if a drug that even if it is not completely curing a disease, but still it is giving you 30 more days,
still I feel it is worth. Absolutely. Right? So, but the cost is absolutely different between these two trucks. One will be around 2.5 lakh and the other will be of 25,000. So, to cover that, you require insurance. You cannot get that drug into a common insurance or normal government or RGHS, any other normal schemes. You won't get that. So, to cover that, any advanced treatment, you require a good insurance. Otherwise, you won't be able to get it. Because you have touched on onco, we have got a product of oncology, basically cancer, where we say 15 lakhs. That's the upper cap for our age. For youngers, it's 20 lakhs. But 15 lakhs we pay upfront, not for treatment, but for anything. Because a lot of times there's not only advanced, but experimental treatments होते हैं जो किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होंगे. या oncology में ऐसे expenses होते हैं कि you want to go to, let's say, Dubai or Singapore for a better treatment. Who takes care of the flight? Who takes care of the hospital expenses? Hotel expenses and things. So this 15 lakhs is transferred into the bank account without any questions asked for usage. In the sense, we need to prove कि cancer हुआ है. And again, for our age, the annual premium is less than 3,000 rupees. Very nice. Very nice. Tell everyone कि this is, so in fact, भास्कर में कल ad निकाला था in Papa's. For the first time saw it. Papa said, ये 49 rupees में monthly. मैंने कहा, because it's about volume and it's a must have. So I must have. You know, it is to be included in it. मैं यही तो बार-बार इसी पे discussion चल रहा है कि you require a premium insurance. It does not, there is a thought process. It is not that it is going to be a costlier, but correct. You have to take care that it should cover your advanced treatments. Correct. If you are saying it is cheaper, I mean, everyone should opt for that. Should opt for it. That should be not a luxury. It is to be, a payment that is to be delivered exactly as, your schooling or your. नहीं, I tell मैंने कहा मूवी देखने जा रहे हो PVR में 2 टिकट लेते हो, पॉपकॉर्न और कोक लेते हो. मूवी तो फिर भी आपकी लग्जरी है. मूवी लग्जरी. आप जैसे अपना होम रेंट देते हो या आप अपना उसका देते हो. It is to be like that. It has to be like that. Yeah. Last चीज मैं पूछना चाहूँगा आपको, एक dietary में any fruits, any vegetables, anything that you recommend to. See, all fruits are good. Okay. Right. You don't have to worry about कि कौन सा अच्छा है, कौन से. Fruits are good. है ना आपके, because it has got lot of antioxidants. Correct. Still you want best is apple. Okay. Best is apple. Papaya is good. Fruits which have only glucose like chiku, somewhat mango, grapes, you can leave aside, right? But it is not, still it is a fruit. Yeah. So fruits, salads should be in your diet. I mean to say at least 40% should be raw things in your diet, like salads, milk, egg, and fruits. 40% should, these should compensate for 40% of your diet. That's excellent. I think wonderful talking to you. पता ही नहीं चला टाइम कब निकला. मेरे को लगा था पता नहीं क्या होगा. Fantastic. Thank you. Pleasure. Thank you.